Hey Guruji, it's a very, very difficult task to be able to talk about Rab. Some of us from the old Sangat, हम गुरुजी को आज की तारीख में भगवान के रूप में पहचानते हैं। कोई शिव जी के, ज़्यादातर शिव जी के रूप में, पर गुरुजी ने दर्शन सभी लोगों को या काफ़ी लोगों को कराए हैं अलग अलग फॉर्म्स में। अब संगत जी, उनके बारे में कुछ कहना बहुत मुश्किल है। हमारी जात इतनी छोटी है ना कि हम एक सृष्टि के बारे में या भगवान के बारे में, हमारी औकात ही क्या है कि हम उनके बारे में उनका कुछ वर्णन करें या कुछ उनके बारे में कुछ बताएं। पर अब जब मैं दर्शन प्रिया पॉल यहाँ अगर मैं आज बैठी हूँ तो कुछ तो मेरे को आपसे बात करनी पड़ेगी, कुछ तो आपको सुनाना पड़ेगा, कुछ तो उनके बारे में बताना पड़ेगा। 1995 में गुरुजी से हम मिले थे। मेरे पेरेंट्स उनसे पहले मिले थे जब वो दिल्ली आए हुए थे 1 महीने के लिए, और ग्रेटर कैलाश में उनके साथ हमें दर्शन मिले थे। मैं एक दिन लंदन से आई हुई थी तो मैं भी चली गई। पेरेंट्स, मदर फादर ने कहा तुम भी चलो, ग्रेटर कैलाश जाना है। सो आई वेंट एंड he was a complete antithesis of what I had in my mind or in my image of a guru, of a swami, of a sadhu. Here came Guruji straight out of the room at the back in silk robes in the month of June, bright yellow, and he was like the sun. He was completely shining like the sun. My eyes couldn't bear the colors, the shine, the orange, the aura, the halo of that bright burning sun. And he came straight into the room and tells my mother, "Acha, ye hegi ye Air India wali." And then I thought, oh my God, where is my mother got stuck? कहाँ इनको कोई ले आया है और कहाँ कैसे गुरु हैं ये, और कहाँ मेरे मदर फादर को फंसा दिया गया है। This was my first impression of Guruji, and I was convinced that my mother and father were going up the wrong path. He didn't speak to me that day at all. He just continued speaking to my parents, and when I was leaving, because I had to fly back from Delhi to Mumbai. I was based in Mumbai at that time. And he said, Ayakar. I just smiled and walked away. This was my first meeting with Guruji. And immediately after that, in Greater Kailash, the very next day, I cannot explain how I arrived there. I cannot explain what inspired me to go there. I cannot explain what attracted me to go there. But there must have been some curiosity. गुरुजी ने कुछ तो बीज डाल दिया था पहले दिन में, चाहे मुझे कुछ पसंद आ रहा था कि नहीं आ रहा था। और मैं गाड़ी लेके अगले दिन ग्रेटर कैलाश फिर शाम को पहुंच गई, और मुझे खुद ना समझ आए कि मैं अकेली यहाँ बिना पेरेंट्स के मैं यहाँ क्यों आई हूँ। और वहां फिर गुरुजी के और मेरे बीच एक मिरेकल हुआ। वहां
हनुमान उपस्थित हुए उस सत्संग में जो केवल सिर्फ मुझे पता था और गुरुजी को पता था। और मैं घबरा गई, मुझे समझ ही नहीं आया कि यहाँ क्या हो रहा है। और 1.5 घंटे के बाद मैं उठ के वहां से चली गई। फिर I met Guruji again. He had to go back to Punjab because his brother had passed away. And when I met him, he just said, Guru पहचान लिया है उन? This was his question to me. And I said, Guruji, संगत पहचान ली है, हाले गुरु हाले भी पहचानना है. So he laughed. He said, जलंधर आएंगे तो तेनू सारे जवाब मिल जाएंगे. This was the beginning of my journey with Guruji. And then, of course, I got involved with Guruji. I began coming to Guruji. My parents were already going there. My sister was going there. And we began our journey. But I will share with you that this journey has not been about miracles. It has not been about उन्होंने इनको ठीक कर दिया या उन्होंने कुछ difficulties हमारी remove कर दी. Actually, for me, when I met him in 95 and today we are in 2025, for me the journey has been more about elevating my spiritual self, my awakening. गुरुजी के साथ रह के एक जागृति हुई है, एक इंटरनल जागृति हुई है, एक एहसास जो थे, जो डॉर्मेंट थे, कुछ बातें जो हमारे अंदर जो मानसिक रूप से या फिजिकल रूप से जो ठहरे हुए थे, जो सो रहे थे, वो सारे आहिस्ते 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 वो खुलने लगे, ब्लॉसम होने लगे. और बहुत सी बातें जीवन की, जिंदगी की बहुत सामने आने लगी, महसूस होने लगी. हमारा पर्पस यहाँ जिंदगी में क्या है, हम क्या करने आए हैं, और एक स्पिरिचुअल रास्ता अपनाना कितना ज़रूरी है. You are young, you are flying, you are roaming around the world. The world is a different place completely. And then this guru lands into your life and your whole perception of life changes. Your responses towards people, your responses towards situations, your journey is completely different. And today, where I stand, जहाँ हम खड़े हुए हैं, वहाँ मेरी जो जर्नी है उसमें गुरुजी, मुझे नहीं लगता कि आज मुझे गुरुजी को ढूंढना पड़ता है, वो वही हैं. कभी वो किसी रूप में दिखाई देते हैं, कभी वो किसी रूप में दिखाई देते हैं. 2006 में, जुलाई 2006 में उन्होंने ऑलरेडी मुझे रिवील कर दिया था. प्लीज मार्क माय वर्ड्स. उन्होंने ऑलरेडी रिवील कर दिया था कि मेरे को तस्वीरों में मत ढूंढना, मेरे साथ कनेक्ट करना हो तो ज़रूरी नहीं है कि आपने एक स्वरूप के सामने आके खड़े होके मेरे को याद करना है. It was July 5th and he taught me, or he showed to me actually. I was in a village in Maharashtra. I had gone on a short holiday. He knew I was on a holiday and he revealed himself in the 5 elements. पांचों तत्वों में उन्होंने मुझे अपने दर्शन कराए. एक गांव में, महाराष्ट्र के कोंकण की तरफ. और मुझे इसमें कोई घबराहट नहीं हुई. इतनी समझ उन्होंने मुझे दे दी थी और मैंने उनको भगवान के रूप में देखा. भ फॉर भूमि, ग फॉर गगन,
व फॉर वायु, आ फॉर अग्नि, न फॉर नीर। मेरे सामने पांचों के पांचों थे, क्योंकि मैं एक नदी के किनारे बैठी हुई थी, और नदी में उन्होंने उस दिन रात को चंद्रमा की किरणों से उन्होंने आग लगाई। 1 बजे का रात का टाइम था, एंड मैं अकेली वहां बैठी हुई थी, एंड वहां उनको, गुरुजी को मैंने उस वातावरण में पहचानने की कोशिश करी। उसके बाद आहिस्ते 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 जब मैं वापस आई, गुरुजी को मैं एम्पायर स्टेट मिलने गई, तो हमारे बीच में कोई इसके ऊपर कोई कॉन्वर्सेशन नहीं हुई। उन्होंने मेरी तरफ देखा, मैंने उनकी उनकी तरफ देखा। ही जस्ट सेड, आ गई है वापस, देख लिया फिर? मैं क्या, हाँ जी गुरुजी। वी नेवर डिस्कस्ड एनीथिंग, आई नेवर आस्क्ड हिम एनीथिंग, he never explained anything to me. But since then, slowly, it was not something that happened overnight, but slowly, I began moving out of Guruji in the form and started seeing him in other things. I started seeing him in the in the in the creation around me. I started seeing him in the environment around me. I started seeing him in people around me. छोटी छोटी बातें गुरुजी से कनेक्ट करने लगे हम। कनेक्शन ऐसे हुआ, हमें चौंकड़ी मार के मेडिटेशन करके उनको याद करने की ज़रूरत नहीं है। वो तो वैसे भी इन बातों को मानते ही नहीं थे। वो हमेशा कहते थे कि अमृत वेले घर गृहस्थी लोग कैसा सवेरे उठ के कर सकते हैं याद रब नू। वो यही कहते थे, अपने काम वगैरह कर लो, जो आपने अपने कर्तव्य हैं घर के वो पूरे कर लीजिएगा, और जिस टाइम पे आप बैठते हो और मेरे को याद करते हो, उसी को समझो कि वो अमृत वेला है। और चाहे वो दोपहर के 2 बज रहे हों या दोपहर के 3 बज रहे हों, किसी आपको 3 बजे सुबह उठने की ज़रूरत नहीं है। तुसी कोई संत बनना है, तुसी कोई साधु बनना है, तुसी ते घर गृहस्थी चलानी है, और अच्छे तरीके नाल चलानी है, ब्लैसिंग्स नाल चलानी है। अपने अपने तुसी जिहड़ी सेवा करनी है बच्चों वाल, अपने वड्डियां वाल, अपने माँ प्यो वाल। एक दिन उन्होंने मेरे को कहा, जब बात उठी कि अब संगत बहुत आती है एम्पायर स्टेट में और सबका एक दिन फिक्स हो जाएगा आने के लिए, तो मैं लंगर करके अंदर वापस आ रही थी हॉल में, दरबार में, और मुझे सेवादार ने कहा कि आंटी, तो गुरुजी कह रहे हैं कि आपको एक दिन चुनना पड़ेगा वंस अ वीक, जब आप गुरुजी के आएंगे। मैं गुरुजी के पास आई, मैंने गुरुजी को कहा, गुरुजी वो मेरे को कह रहे हैं कि, कहते नहीं, ये तेरे वास्ते नहीं है, इत्थे भीड़ बड़ी हो जाती, इत्थे बड़ा मुश्किल हो जाता सबनों पटाना, तू आएंगी जदों तेरा दिल करेगा। हुण मम्मी डैडी की सेवा कर, वो उम्र च जा रहे ने, हुण तू बॉम्बे तो दिल्ली वापस आ गई है, तो जिन्ना भी तेनों टाइम मिलता उन्हां दे नाल बिता, और जदों भी तेरा दिल करेगा तो मैनू मिलन आ जाया करें। ये उन्होंने मुझे एक अश्योरेंस दी थी। तो मैं कभी दोपहर को आ जाती थी, कभी मैं अकेली आ जाती थी, कभी मैं, ज़रूरी नहीं था कि मुझे संगत के टाइम ही आना पड़ता था शाम को। फिर टाइम वो प्रिविलेज कभी कभी गुरुजी ने दिया, ये नहीं था कि सदा के लिए ऐसे ही था, पर कभी कभी उन्होंने वो टाइम अलॉट किया। तो गुरुजी की बातें हम कहाँ क्या बताएं आपको, कि वो आपकी सारी स्क्रिप्ट भी लिखते थे। एक बार उन्होंने मुझसे कहा कि, ये 2006 की बात है, उन्होंने कहा कि डैडी मम्मी को सारे गुरुद्वारा की सैर करवा दे, पंजाब ले जाए इन्हों। I came home, I told my parents about it. My father was not very keen on going off on a tour of the Punjab, and they said, हाँ, we'll see.
So every time I'd go to the Gurdwara, to the Darbar to see Guruji, he would say कि program बना लिया, program बना लिया, लेके जाओ mummy daddy नो, sister नो, लेके जाओ mummy daddy sister नो. So one day we decided to leave, and we took the train. He asked me the dates. Guruji did ask me the dates, and we left for Amritsar. And when we were in Amritsar, my parents decided they wanted to do the parikrama. They were old, my parents were old, and my father was already touching 90, and but they said no, we will do the parikrama. And slowly they started walking. अब रास्ते में और भी संगत है जो गुरुद्वारे मत्था टेकने आई है, लोग आए हुए हैं, तो लोगों ने रास्ते में हमें सत श्री अकाल, वाहिगुरु लोग हमें ब्लेस करने लग गए जब हम वॉक कर रहे थे, जब हम परिक्रमा शुरू करी हमने. मेरे मन में आया कि मैं अमृतसर कई बार आई हूँ, तो मेरे साथ तो कभी ये ऐसा कभी हुआ नहीं है कि जब आप चल रहे हैं तो लोग स्माइल करते हैं, लोग आपको ब्लेस करते हैं. सभी लोग अपना पाठ करते करते घूमते ही हैं. हम आहिस्ते आहिस्ते, फिर कोई मेरे पास आया, कहने जी ये आपके सास ससुर हैं? ऐसे नहीं जी, मेरे पेरेंट्स हैं, मेरी सिस्टर है, मेरे फ्रेंड है, हमारा ड्राइवर था हमारे साथ. सो दे सेड कि आप इनको व्हीलचेयर दे दीजिएगा, हम व्हीलचेयर ले आते हैं. सो आई सेड नो, दे डोंट वांट द व्हीलचेयर, वील वॉक इट. Then we started receiving, the 3 younger people there, we started receiving a whole lot of blessings from Sangat, who were also walking and doing the parikrama at the Golden Temple. हमें कर रहे हैं, अब वो आए हुए हैं, it's a place of pilgrimage and it's a divine place, so maybe आदत है उनको करने की, और वो हमें भी बोल रहे हैं. हम जब when we came to the entry point to go take the corridor and go into the Golden Temple where the Guru Granth Sahib is, some gentleman who standing there, ऐसे जी तुसी ए वाले लेफ्ट वाले लाइन च ना लगो, तुसी राइट विचों निकल जाओ, खाली है, इन्हां नू इत्थों लेके जाओ मदर फादर नो. We said okay, that was khali, so we walked through there. We walked into the Gurdwara from the side entrance, and अब इतनी भीड़ होती है गुरुद्वारे में अंदर, हमने अब किसी तरह अपना मत्था टेका और हम निकल रहे थे. मेरे फादर ऑलरेडी मुड़ गए थे, ड्राइवर के साथ वो मुड़ गए थे, और मेरे को किसी ने टैप किया पीछे से, रेलिंग के इस तरफ से. उन्हें कहा जी पाई जी बुला रहे हैं. हमने कहा, आई टर्न अराउंड से, हाँ जी पाई जी. कहते वो तुहाडे नाल कौन ने, उन्होंने वापस बुलाओ. ही स्टूड अप एंड सेड उन्होंने वापस बुलाओ. मैंने वो आवाज़ दी अपने ड्राइवर को और वो वापस आ गए. वो भीड़ में से वो फिर किसी तरह वापस अंदर आ गए. मैंने उनको कहा, मैं हाँ जी. कहते जी इन्हों सरोपा चढ़ाना है. अब मेरे को समझना है, मैंने कहा शायद बुजुर्ग है इसीलिए वो सरोपा चढ़ा रहे हैं, पर आसपास तो पूरा दरबार भरा हुआ था काफी बुजुर्ग लोगों के साथ, और उन पे तो सरोपे नहीं चढ़ रहे थे, सिर्फ मेरे फादर पे चढ़ रहे थे. उन्होंने जी सरोपा चढ़ाया, वो हमें पतासा वगैरह दिया, वो ऑरेंज सा वो कपड़ा दिया, स्कार्फ सा दिया, एंड आई इवन आस्क्ड द पाई जी, डू आई हैव टू पे एनीथिंग? ही सेड नहीं 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 जी बिल्कुल नहीं. एंड ही स्टूड देयर एंड he said मैं जरा छोटी जी अरदास कर लगा. And he's on the other side of the railing and I'm on this side of the railing. My parents, my sister, we are all on this side. And he did an ardas, small, short ardas. हम बड़े खुश हो गए. हाँ हम बड़े कहे जी पेरेंट्स आए और यहाँ अरदास भी हो गई, और हम वहाँ कीर्तन चल रहा था और हम बाहर आ गए. हम फिर वापस चले गए, went back to the car outside, and then
we didn't think too much about what had happened that day. We thought, very nice trip. It was a very nice visit to the दरबार साहिब, and बहुत अच्छा हो गया जी. अगले दिन हम गए तरन तारन, and Taran Taran khali tha bilkul. There was hardly anybody in Taran Taran. It's a big gurdwara, big sarovar. The largest sarovar is in Taran Taran, and bigger than Golden Temple. And we arrived at in the gurdwara, and फिर हम अंदर गए, मत्था टेका. वहाँ पे भी दरवाजे थे, तीन तीन दरवाजे थे. हम एक से जब बाहर निकल रहे थे तो कोई दो लेडीज अंदर आई हुई थी. उन्होंने कहा जी वो भाई जी बुला रहे हैं अंदर. आई वेंट बैक. ਕਿਸੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਓ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ. And they again carried out the same ceremony that had been done in the Golden Temple. They put a shawl around my father, they gave us separate prasad, and then it struck me that, hey, something's happening here. We don't know anybody here. We've come on our own. And this happened yesterday at Golden Temple. It's now happening in Taran Taran. ये हो क्या रहा है यहाँ? हम एक दूसरे की तरफ देखने लगे. हमने कहा ये कुछ हो रहा है यहाँ, कुछ गड़बड़ है. Actually we use the word गड़बड़ है. And we realized that somebody had arranged something, and all this was taking place in the Gurdwara in Taran Taran. From Taran Taran, we went to Goindwal Sahib, where there's a step well, there's a kuwa, and it's connected to Guru Amar Das, and the same thing happened at Goindwal. By then we were sure that a divine power or an energy was handling all this, and this was completely outside our control. We had no role to play in this, and my father and my mother were given a lot of blessings in these three gurdwaras. My mother was puzzled. She kept saying, "Ki ho raha hai?" She was of course convinced, because she was very fond of Guruji. She was convinced that, you know, Guruji ne kuch kita hai, Guruji ne kuch kita hai. My dad didn't think like that, but my mother thought like that. And we returned to Delhi on the dates as I had given to Guruji. When I went to meet him the next day, so he looks at me, I smiled at him, and he says, "Fir daddy ne sare saron pe ikkathe kar le." You know, there was no need for me to ever ask him anything, or from him to explain anything to me. This was my relationship with Guruji. I do not know how the others Sangat managed their relationships with Guruji, but in my case, we never asked him anything, he never explained anything. We just looked at each other, and he would understand कि हाँ इन्हू पता चल गया. And I would convey to him कि मैनू तुहाडे सारे जैसे तुहाडे तुसी जादू वगैरह कर दियो या miracles वगैरह कर दियो, सारू मैनू सारा समझ हो रहा तुसी की मस्ती कर रहे हो, and मैनू भी सारी समझ गल आ रही है. And we would just leave it at that without any explanations. Today I do feel that I should have asked him a few questions. Today I do feel after all these years, I should have perhaps checked with him कि गुरुजी तुसी की कर रहे हो, तुसी क्यों करा रहे हो, or at least ask him तुसी क्यों कर रहे हो. But now I can only ask him now, you know, address the question to the universe and see if he will give an answer to that. So we've had our series of, here in this case, you will find Sangatji that Guruji had ordered the whole plan. He was the producer, he was the director, he was the script writer. He did everything for these 3 days when my parents and this friend of mine and my sister, we went on this trip. This was all scripted by him.
arranged by him, and he arranged for such large blessings to be given to my parents and those of us who were accompanying them. The blessings we received from Sangat who were walking around the Gurdwara. I mean, it's amazing. It's amazing. I think for a whole lifetime we collected blessings from even people who were walking at the Golden Temple, largely at the Golden Temple, not so much in Taran Taran and Goindwal. So we've had a series of these happenings, experiences, miracles, if you like to call them, and he is continuing to perform those miracles even after he left the physical form. Personally, for me, he hasn't left the physical form because before he had gone, he'd already told me that I live around you. In 2000 and on 5th of July, he'd already taught me that he was a part of all the elements. He also had a connect along with Hanuman with me. We were once in Jalandhar and the local ladies had come to sit with him. We were sitting on the carpet. He was also sitting on the carpet. This is, I think, 1996 ki baat hai. I had gone to Jalandhar to meet him, and they were talking about unmarried ladkiyon ko शिव जी की पूजा करनी चाहिए. And because I'm unmarried, so they thought they must impress upon me कि आंटी आपको शिव जी की पूजा करनी चाहिए. And Guruji stopped them. Guruji said, नहीं, ये शिव जी की पूजा ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ है. And I do not know where he brought this up from, but he said, ये हनुमान की पूजा करेगी. And I do have a relationship with Hanuman as well. And often Guruji has brought Hanuman onto the scene, and I have had visions of Hanuman. I have met Hanuman. I was undergoing a surgery in Primus Hospital, and Hanuman appeared in the OT. And I was treated as a miracle patient at Primus after that. Now, I've had all these series of experiences. So have my parents, so has my sister. But for us, the more important part has been how we have changed. From the darshan that was, from the darshan prayer Paul that was, what have I become today? And how am I continuing to change myself? And it has been through larger awareness, through better responses, more compassion. It has been with start treating everybody equally. There's nothing like old Sangat and new Sangat. Everybody is Sangat. So it's these processes that have continued to reveal his form to us, and we have continued to enjoy his presence. He once came in 2016. He came to our house. He left his physical body in 2007. We were doing his first satsang in Defense Colony. And it was by invite. And it was a large satsang. And I had worked very hard because it was the first time we were doing this. And I was standing in the driveway. It was 24th of December. And my driver and my staff, who were all attending to people coming in and directing them where to wash their hands and where to leave the shoes, he tells me, Didi, ye andar aana chahte hain. Now here was this man
who walked into the driveway. It's fascinating. He was tall, he was a little fair, he was a little bald from the front, he had hair at the back, and he did not appear well dressed. उन्होंने एक जैकेट पहनी हुई थी जो बहुत लूज थी उनके ऊपर, एंड जब वो मेरे पास आए उन्होंने अपने ट्राउजर में एक नाला बांधा हुआ था, एंड द नाला वाज हैंगिंग आउटसाइड. अब मेरे को लगा ओहो अब ये कौन आ गया हमारे यहाँ. अब सो ही दैट गाय वॉकड अप टू मी. आई सेड हाँ जी. आई थॉट थोड़ा गरीब सा लगता था. एंड आई सेड he said, he talks to me in English. He said, I have come to attend the satsang. Now I looked him up and down, and he didn't look like he was fit enough to come into our house. He looked like as if he was drunk, either he was an alcoholic or he had taken drugs. He looked all spaced out and his expressions were all very strange. He looked completely different, didn't belong, to the world that we had created that day in our house. I said, I'm sorry, but this is by invitation. So he says, yes, I know. But this is what he tells me. And it did not strike me at that stage. It struck me only a day after the event. He tells me, but I attend all of Guruji's satsangs. So I looked him up and down. ऐसे जी मैं इसके नाला लटक रहा है, ये पैंट वैंट इसने मांग की पहनी हुई है, जैकेट कपड़े इसके लग रहे हैं जैसे ये पता नहीं कहाँ से आया है, इंग्लिश ये बड़ी अच्छी बोल रहा है. ये मेरे ऐसे दिमाग में आया कि पता नहीं ये कोई शायद कोई वेवर्ड सा बेटा हो किसी का. He looked about 40 years old, but 38-40 years old, and हो सकता है डिफेंस कॉलोनी में रहता हो, पता नहीं किसी का बेटा है, काम वाम नौकरी वोकरी नहीं करता है, पीता रहता है या ड्रग्स पे है, और शायद इसको खाना चाहिए. मेरे मन में बात आई कि शायद इसको खाना चाहिए, शायद पता नहीं खाना खाया नहीं खाया कि क्या बात हुई है जो यहाँ आ गया. So he kept standing there. Now I had to take this split decision whether I should allow him to enter the house or not enter the house. I just looked him up and down. I said, are you sure you want to attend this satsang? He said, yes, I want to attend this satsang. I said, okay, please go in. अब उसको मैंने अंदर भेज दिया. फिर वो आके अंदर बैठ गया, गद्दों पे आके बैठ गए. We had lot of other people, ये भी आके बैठ गए. जब सत्संग खत्म हुआ and when people were leaving, ये भी बाहर आया. I was still, मैंने कहा चलो अब आ गया, लंगर कर गए. When he came out, I asked him just like I was asking other people. I said, आपने did you have langar? So he said, yes, I've had langar. And he stepped out of the driveway and walked out of the gate. I had already told my driver in the meantime and the other staff कि वो जो आदमी जो पहले अंदर आया था ना, जो अजीब से कपड़े पहने हुए थे और अजीब सा लग रहा था, जब वो जाएगा जरा देखना कौन सी गाड़ी में बैठता है या कहाँ जाता है. So when he stepped out, my staff kept an eye on him. And then my driver calls me hastily. He said, Didi, jaldi aao, gate pe aao. And I came to the gate. Now there's a long road in front of our house. And this guy had disappeared. ऐसे वो गाड़ी में बैठे, किसी नहीं, वो पैदल यहाँ से निकले हैं, अब वो गायब हो गए. You'll have to decide, Sangat ji, yourself, what this was or what happened that day. We were still not convinced. देखिए, doubting Thomases हैं हम लोग भी.
हाँ, हम कहते तो हैं हम गुरु जी को फॉलो करते हैं, हम गुरु जी को सरेंडर कर दिया, हम गुरु जी को कनेक्ट करते हैं, पर फिर भी एक मन में एक शंका रह जाती है कि ये कौन था, ये कौन आया था, ये कहाँ से आया था, किसके घर से आया था, ये हमारे यहाँ क्यों आया था। हमने कोई एडवर्टाइजिंग नहीं करी थी, हमने किसी को रास्ता नहीं बताया था, हमने पर्सनल इनवाइट पे इनको सबको बुलाया था। फिर मैंने अपने स्टाफ को, हमारे ड्राइवर्स वगैरह को बोला कि ये शायद गुरुद्वारा जाता होगा, जिस दिन वहाँ लंगर होता होगा ना, इसको अगर खाने की जरूरत है तो ये गुरुद्वारे जरूर जाता होगा, लोकल गुरुद्वारे खाना खाने। You won't believe it, my staff used to go to the gurdwara to check if this guy used to come there or not. There were two satsangs that took place in Defense Colony after my satsang, and we visited those two, we were there at those two satsangs, and we kept looking out for this guy, my sister and I. We never saw him there. We never saw him in the Gurdwara. We never met him. Every signal we thought पता नहीं गरीब आदमी था, कोई beggar था, कि कौन था, शायद signal पे कहीं खड़ा हो. For 2 years we looked for him after that, and we never saw him, never met him again. And we've had satsangs after that. He's never come to our house after that. So I don't know what you're going to make of that, or what. He arrived. We can only come to that conclusion that he decided to visit us, and he came in that form. So we've had a series of a whole lot of these kind of experiences with dear Guruji, and when we prepare ourselves for a satsang, we want to do it exactly as it used to be during Guruji's time. It's like, you know, कि एक मर्यादा है सत्संग करने की, और हम उसी तरह से करना चाहते हैं. हम शब्द भी वही प्ले करते हैं जो हमने उस टाइम एम्पायर स्टेट में सुने थे. और अगर आप मेरे को पूछें तो why we find it more interesting to listen to the shabads which was played during Guruji's time, and not to the new compositions which are also very beautiful, or to the bhajans that have come about as in honor of Guruji. But we get high only when we listen to those shabads. We get spiritually elevated in the darbar जब हम, क्योंकि हमारा जो कनेक्ट है गुरु जी के साथ वो शब्द के थ्रू हो जाता है. फिर जब हम किसी संगत में बैठे हैं और हम वही सुनते हैं पुराने पुराने शब्द, तो हम इमीडिएटली गुरु जी के साथ कनेक्ट हो जाते हैं. हम कोई नया शब्द बीच में सुन लेते हैं या कोई भजन सुन लेते हैं, मेरे लिए तो मुश्किल होता है कि मैं अब कहाँ इसके बीच में अब गुरु जी को ढूंढूँ. तो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि मैं वही शब्द सुनूं या लगाऊं या प्ले करूं जिसमें हमारी, मैंने और औरों से भी बात करी कि भाई आप क्यों थोड़ा सा बोलते हो कि नहीं दर्शन आपने ये एक निर्वैर खालसा का क्यों लगा दिया, एक शब्द बड़ा सुंदर शब्द है. एंड पर हम कनेक्ट करते हैं गुरु जी से वो शब्द के थ्रू. जैसे ही वो शब्द बजता है हम वी आर बैक इन एम्पायर स्टेट और जलंधर, और वी आर बैक इन डुगरी, एंड वो माहौल एकदम वही क्रिएट हो जाता है जो गुरुजी जब वहाँ आसन में बैठे होते थे. अब ये भी एक हम लोगों का एक कनेक्ट होता है गुरुजी से. और मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट यही होगी कि आप लोग मर्यादा ज़रूर रखें जब आप सत्संग करते हैं. हमारे यहाँ कोई जागरण वगैरह तो होते ही नहीं थे गुरुजी के टाइम पे, तो लंगर भी सिंपल होता था, कोई लैविश लंगर नहीं था, पर ख़त्म ज़रूर करते थे बिकॉज उन्होंने हीलिंग प्रॉपर्टीज़ लंगर में दे रखी हैं. आपको ये ज़रूर अंडरस्टैंड करना है कि जब आप किसी सत्संग में आपके फ्रेंड आपको बुलाते हैं या फैमिली मेम्बर्स आपको बुलाते हैं, आप एक सोशल गैदरिंग में नहीं जा रहे हैं.
आप एक सत्संग में जा रहे हैं, ये संगत है, इसके नियम अलग हैं, इसकी मर्यादा अलग है, इसके कानून अलग है। और वहाँ जाके हमें बातें नहीं करनी है, हमें चिट चैट नहीं करना है, एक दूसरे का हाल नहीं पूछना है, वो सब आप टेलीफोन पे घर जाके पूछेगा। सत्संग में आप केवल 1 घंटा 1.5 घंटा आप क्या गुरुजी को अर्पण नहीं कर सकते हैं? फुल टाइम 1.5 घंटा आप पिक्चर भी तो देखते हैं टीवी पे बैठ के या सिनेमा हॉल जाके, आप डिनर्स एंड लंचेस पे भी तो जाते हैं जहाँ 2-2 3-3 घंटे बैठते हैं, जो आप फुल टाइम अपने फ्रेंड्स को देते हैं। तो उतना ही टाइम अगर आप गुरुजी को अर्पण कर दें तो आप देखिएगा कि कैसे ब्लेसिंग्स आपके लिए फ्लो होंगी। और आपकी ब्लेसिंग्स, आप शायद हम लोग इंसान हैं, because we want to see something, we want to hear something, so we are looking for visible signs. But Guruji is coming in an invisible form, and you have no way of knowing how he will bless you, when he will bless you, and what will be the path that he will take to bless you. It is not essential or necessary that you will know about it. कई बार उन्होंने हमारे लिए कुछ किया था 95 में, 96 में, 97 में, और हमें पता ही नहीं चला। हमें जाके 2000 में मालूम पड़ता है, 2001 में जाके मालूम पड़ता है, 2007, 8, 9 में मालूम पड़ता है, अच्छा गुरुजी ने उस टाइम पे ये किया था हमारे लिए, हमें तो पता ही नहीं चला। हमें 10-10 साल के बाद मालूम पड़ता है वो कि हम पे क्या मेहर करके गए हैं, क्या ब्लेसिंग्स देके गए हैं, क्या ग्रेस देके गए हैं। मेरी सर्जरी उन्होंने आई थिंक 2001 में कर दी थी। मुझे तो पता भी नहीं था वो क्या कर रहे हैं, मेरे को तो कोई शिकायत भी नहीं थी। जब प्राइमस में मैं पहुंची, जहाँ मैंने हनुमान को देखा, 22 में मुझे याद आया कि अरे ये तो गुरुजी मेरी ऑलरेडी सर्जरी कर चुके थे, उस टाइम पे पत्ते लगा चुके थे। एंड वो पत्ते उन्होंने शोल्डर में लगाए, उन्होंने नीज में नहीं लगाए, उन्होंने हाथों पे नहीं लगाए, फ्रोजन शोल्डर पे नहीं किया, उन्होंने पत्ते हिप्स पे लगाए थे, और मेरी हिप्स की सर्जरी हुई थी 20 years later. And all those 20 years, that whole information was finished, had vanished. It was only when I landed up in hospital I realized, oh, but ये तो already it had been done. ये तो नाम के वास्ते सर्जरी हो रही थी. There was no pain, there was no difficulty, there was no problem, and you know, um, um, things happened in the hospital which were not normal, and they were not normal only because Guruji had taken care. So I'm only just trying to explain to all of you that it's not necessary that you have to believe in him. That's my understanding. हम कहीं बाहर, I'm traveling to Canada or to USA, and somebody tells me, you know, my friend is not well or my daughter-in-law is not well. I pull out a Swaroop of Guruji, a small picture of Guruji, and give it to them. They say, oh, who is he? I said, don't worry about it. Don't worry about who he is. You just keep it there. Just leave it under the pillow or leave it near a bedside, and you'll be okay. You keep praying to whoever you want to pray to, but he will help. He will come across and help. And there have been people who have come back to say, we saw him in a dream, we saw this man without any hair, we saw this gentleman wearing robes, and we've never met him, we don't know who he is, we don't even know where he lives, and he has come and helped us to recover. A lot of health issues, he has helped people, given blessed people with children where they were not able to conceive and have children. All this has happened right under us when we were sitting in the darbar with him in MG Road, when we were there. It is amazing the things that he has done and blessed, and I can only plead with you, pray to you, that you call him if you are in difficulty, call him when you're happy,
share your happiness with him, share your difficult moments with him, and he will certainly show you the way. He will certainly lead you to wherever and to whatever is good for you and is proper for you. This is all I would like to share with you today. Thank दर्शन you. आंटी, जो नई संगत है या आपका ये यूथ है, वो उसके पास सवाल होते हैं कि हम कैसे कनेक्ट करें। जैसे आपने बोला कि गुरुजी हर जगह पर हैं, ये आपका एक्सपीरियंस है। जो नई बच्चे हैं उनके लिए आप थोड़ा सा बताएं कि उनको कैसे कनेक्ट करना चाहिए। आप अपने फ्रेंड के साथ कैसे कनेक्ट करते हैं? आप अपना मोबाइल उठाते हैं और नंबर डायल करते हैं। आप अपना फ़ोन उठाएं और गुरुजी डायल करें। I don't really mean physically that you will do GURUJI, but mentally you will dial Guruji. It's a very simple connection. He simplified everything. He had no complexities. You've all heard about it in other satsangs also, that he did not encourage people going to soothsayers or going to astrologers or following any particular system. He said everything is free. Learn to live in the freedom that God has given you. And he never insisted on people to stop drinking or stop smoking or stop eating non-veg. There was nothing like this at all. And therefore, when he tells you to connect to him, there is no complication in the system. You just sit down and say, Guruji, I need your help. मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है 2 years ago दैट वो वायु के रूप में वो बहुत जगह घूमे हैं। एंड वायु बीइंग हनुमान्स फादर, वो अमरनाथ केव्स में वो किसी की फोटो अलाउ नहीं करते हैं। अमरनाथ में वो कोई संगत गया होगा, जरूर कोई संगत ही लेके गया होगा, कोई ऐसे तो नहीं उड़ के आ गई वहां तस्वीर, और कोई लेके गए हैं वहां अमरनाथ में। और वहां त्रिशूल के पास गुरुजी की एक तस्वीर लगी हुई थी अमरनाथ में। मैं शिमला गई हूँ, वहां कुफरी का एक साइन था और वहां कुफरी के साइन के नीचे लिखा हुआ गुरुजी संगत। ये स्पेन में किसी छोटी सी जगह में वहां एक सत्संग होता है, बेल्जियम में वहां सत्संग हो रहे हैं। ये वहां लोग जुड़े कैसे हैं? ये कहाँ, वहां पे भी तो उपस्थित होते होंगे, ये तो नहीं कि वो यहीं पे हमें ब्लेसिंग करते हैं और बाकी दुनिया में नहीं कर रहे हैं। अनजान लोगों की भी वो देखभाल कर रहे हैं। अब वो तो उन्होंने तो कनेक्ट भी नहीं किया उनके साथ, सिवाय कि कोई उनके पास फोटो छोड़ गया क्योंकि उनकी जान पहचान थी और उन्होंने कहा इनसे बात कर लीजिएगा, इनको आप पूछ लीजिएगा और इनसे प्रे करिएगा और आपको ब्लेसिंग मिल जाएंगी। You just have to sit down and say, Guruji, please help me. You don't have to remember, initially you don't have to believe in him. The belief will come slowly. हमने थोड़ी ना जाके जिस दिन हम उनको मिले थे उसी दिन से हम उनको मानने लग गए। कोई, हमें भी टाइम लगा, हमने भी थोड़ा सा उनको देखा, फिर कुछ बातें वो हमको बताने लग गए हमारे बारे में। उनको कैसे पता थी, उनको कैसे मालूम था मैं आज क्या करके आ रही हूँ, मैं कहाँ से आ रही हूँ, मैं किसको मिल के। वो मेरे को मेरे फ्रेंड्स के नाम बताते थे जो बॉम्बे में रहते थे। उनको क्या लेना था देना था एयर इंडिया के साथ, उनको कैसे मेरे फ्रेंड्स के नाम पता थे? ये भी होता था। तो फिर आपका जो कनेक्शन है गुरुजी के साथ, जो आप अब जुड़ना चाहते हैं, ना भी आप जुड़ना चाहें, मैं तो ये जरूर, मैंने उस दिन भी किसी सत्संग में कहा था कि मैं जरूर सबको बोलूंगी कि एक बार जरूर सत्संग गुरुजी का अटेंड करें। चाहे आप उनको मानते हैं नहीं मानते हैं, उनको चाहते हैं नहीं चाहते हैं, उनके बारे में आपने सुना है नहीं सुना है, एक बार कहीं अगर आपको कोई इनविटेशन आती है तो आप सत्संग एक बार जरूर अटेंड करें। ये ना हो कि 50 साल के बाद आपको लगे कि हमसे गलती हो गई थी, आपको रिग्रेट हो कि अब एक डिवाइन एनर्जी थी हमारे पास
और हमें मौका मिला था उनके चरणों में बैठने का, और हमने इग्नोर कर दिया, या हम कैजुअल रहे, या हमने डिसमिस कर दिया, और वो अपॉर्चुनिटी हमने गंवा दी। आप ज़रूर करिएगा, आप ज़रूर कनेक्ट करें उनके साथ, और 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 सरेंडर तो कनेक्शन के बाद ही होगा ना। आप सरेंडर क्यों करेंगे अभी, जब तक आपके साथ कुछ होगा नहीं, जब तक आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं आएगा। आप भी तो हम इंसान हैं, हम ऐसे कैसे किसी की बात में विश्वास कर लें जब तक हमारे साथ कुछ होता नहीं, तब तक हमारे लिए कुछ अच्छा नहीं होता है। तो उसको थोड़ा टाइम लगेगा, पर आप ज़रूर कनेक्ट करें, और आपने सिर्फ ऐसे ही कनेक्ट करना है, और कोई तरीके नहीं है कनेक्ट करने के लिए। हम भी तो वहाँ जाते थे, रेगुलरली जाते थे उनके पास, हर रोज जाते थे, बैठते थे। हमारे फ्रेंड्स, मेरे फादर के फ्रेंड्स हंसते थे। वो कहते मेरे फादर को पूछना, गुरदियाल तुसी किथे जाते हो आजकल? डैडी ने कहा ना जी हम एम्पायर स्टेट जाते हैं, MG रोड जाते हैं। अरे यार तुसी की करदे हो उत्थे? बड़े तुसी 3-4 घंटे लगा देंदे हो। तो वो की कहंदे ने? तो डैडी ने कहना जी वो तो बात ही नहीं करते हैं, बात नहीं, ओरेशन नहीं करते हैं, कोई वो he doesn't do any speeches, or he doesn't talk on religion, or he doesn't do so he said, then what do you do there? He said, I just sit there. He said, does he talk to you? No, he doesn't talk to me, or very little. Then people used to say कि you go there, you spend so much time there, you go and sit there for 3, 4, 5 hours. वो आपसे बात भी नहीं करते, वो आपको कुछ बताते भी नहीं है, वो आपको कुछ गरन साहब के ऊपर कुछ एक्सप्लेन नहीं करते हैं। तो वहाँ आप लंगर खा के ऐसे आ जाते, 4-4 घंटे आप वहाँ क्या करते, टाइम वेस्ट कर रहे हो आप लोग वहाँ अपना। पर हमें तो नहीं लगा हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं। हम जब वापस आते थे, we used to feel so full of divine energy. We used to feel so full of कि कल सुबह अच्छा करना है, कल जाके घर जाके स्टाफ के ऊपर शोर नहीं मचाना है, स्कोल्ड नहीं करना है, थोड़ा बिहेवियर अपना इम्प्रूव करना है। तो कुछ समय के लिए वो उनका इम्पैक्ट तो रहता था ना हमारे पे। हम कुछ सोचते थे ना अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, अपने आप को कैसे कोई, पर 2-3 दिन लास्ट करता था, उसके बाद फिर हम वहीं के वहीं आ जाते थे। पर इट टुक टाइम, इट टेक्स टाइम। दर्शन आंटी, आपने बोला कि हनुमान जी के साथ आपका कनेक्शन, और गुरुजी ने आपके फादर मदर के साथ आपको गोल्डन टेम्पल एंड गुरुद्वारा साहब और भेजा। कई लोग कहते हैं कि अ, और कहीं नहीं जाना है, तो क्या गुरुजी ने वो, अब आपने जैसे बताया कि आप हनुमान जी को गुरुजी ने बोला इनू करन दो, तो गुरुजी ने कोई चीज के लिए ना तो नहीं करा? नहीं, कभी नहीं, गुरु जी ने ना कभी नहीं किया। मेरे को याद है कि कोई लोग आए हुए थे और बैठे हुए थे, और उन्होंने देखो गुरु जी का एक जनरल कुछ नहीं था। उन्होंने जब भी 1-to-1 बात करी तो उन्होंने उस संगत के लिए कुछ कहा, और उन्होंने कहा कि गुरु जी हम वैष्णो देवी जा रहे हैं। गुरु जी ने कहा की लोड़ है जान दी वैष्णो देवी, सब कुछ ते इत्थे मिल जाएगा थानू, ऐसा ना घूमया करो। मुझे ये बात याद है क्योंकि मैं वहां बैठी हुई थी। मैं जब केदारनाथ बद्रीनाथ जा रही थी या हेमकुंड साहब जा रही थी, मैं एक दिन गुरु जी के पास आई और मैंने गुरु जी से कहा, गुरु जी मैं यमुनोत्री और आ, आ, हम यमुनोत्री जा रहे थे, एक्चुअली यमुनोत्री जा रहे थे। गुरु जी हम यमुनोत्री जा रहे हैं। कहते हाँ बिल्कुल घूम के आओ। अब ये दो बिल्कुल 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 अलग अलग बातें हैं। अब हम सोचेंगे गुरु जी ने हमें ऐसे कहा और किसी और को कुछ और कहा। I don't want to go into the genesis of that because I don't know. I don't know why he said yes to somebody and said no to somebody else. I have no idea. When my mother went to him and said, I have 2 daughters and they are not getting married, he laughed it off and said, there is no need to get married. And immediately one lady came with her grown up daughter and Guruji ने उसको इतना डांटा, अकल नहीं है तुम लोगों को, कुड़ी दा ब्याह नहीं किता है तुसी ये नहीं। This was in Greater Kailash.
This was in when he was there for a month. And ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਨਿਆਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ you won't get any salvation. ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਘਰ ਬਿਠਾਇਆ, ਉਹਦਾ ਫਟਾਫਟ ਵਿਆਹ ਕਰੋ. And my mother couldn't believe this was happening to her. This was the first day when I met Guruji. And my mother couldn't stop herself from telling him when she was leaving that day कि Guruji, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ. So he laughed and he told my mother, ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, मैं भी ते कुवारा बैठा हुआ है. He told my mother that. He actually told my mother that. He said, मैं केड़ा ब्याह कराया just from the Paul auntie. And my mother had to keep quiet. Now, why he did that? I mean, only he will have the answers. We won't have the answers at all. We don't know. और दर्शना आंटी, जो नई बच्चे होते हैं ना, तो इनको जब लंगर सर्व होता है या तो इनको समझ में नहीं आता, इनको लगता है कि कैलोरीज हैं, हमें खाना है, कितना खाना है. आपको जब गुरु साहब ने लंगर दिया होगा जब आप फिजिकल फॉर्म में थे, तो गुरु जी ने कभी आपको लंगर के लिए या लंगर की जो इम्पोर्टेंस है उसके बारे में आप बता दो. Langar is not food. That's my understanding of it. Langar is divine prasad. Whether you have it in a mandir or you have it in a gurdwara or you have it at Guruji's. In Guruji's case, we know, because we were there at that time, that he has filled the food with healing properties. And just like the Sikh Gurus, Guruji has also insisted on langar. He has always insisted that we partake of the langar. लंगर में हीलिंग प्रॉपर्टीज हैं, और जब आप लंगर लेते हैं वो खाना नहीं है. जब आप लंगर ले रहे हैं, आप आगे पीछे अपने साथ जो बैठे हैं, आप जब बड़ा मंदिर जाते हैं या किसी संगत में जाते हैं, आप प्लीज़ कॉन्सेंट्रेट करिए खाने पे और निचोड़ के खाइए उसको. वो कहते हैं ना, जूस निकाल के वो सारी एनर्जी अपने में लीजिएगा, बिकॉज इट इज़ गोइंग टू हील यू. If you have, the body requires healing, the mind requires some kind of nourishment, and this is coming through the magic of the langar. Please do not treat langar as food. It is not food. It is divine prasad. It is completely divine prasad. So young people, when they're coming and you're wanting to be careful about your proteins and your carbohydrates, so are we. We are all senior citizens. जब डायबिटिक लोग आते थे वहाँ और कहते थे गुरुजी हम आधा किलो जलेबी नहीं खा सकते, गुरुजी ने आधा किलो और दे देनी, वो 1 किलो बना देना और फिर कह देना अगले दिन जाके अपना शुगर दा टेस्ट करा ला. So I know you're all conscious of it, you have diet fads, but this is langar that you are having, which is blessed. It's come from a kitchen where prayers have been conducted, and you are eating food which is nourishing, which you will not get in your own house, even if it's superfoods that you're eating. So please treat the langar as more than the superfoods that we read about or hear about today in various programs. दर्शना आंटी, जो बच्चे हैं आज के, ये कहते हैं कि जब आप सत्संग, जब हमें लगता है कि वो हमारे साथ गुरुजी ने ये किया तो हम शुक्राना करें. अभी जनरली निरेट आर ब्लेसिंग्स, जैसे अभी आपने अपना सत्संग बताया, तो ये लोग कहते हैं कि हमें नहीं बताना, नहीं हम नहीं बताएंगे. तो आप एक ये भी एक्सप्लेन करो कि सत्संग शेयर करना कितना इम्पोर्टेंट है. Yeah, it's very important to share सत्संग्स. गुरुजी अपने टाइम पे उन्हीं लोगों से कराते थे जिनको उन्होंने कोई मैसेज देना था या कोई वैक्यूम उनकी लाइफ में भरना था. एंड कई बार ऐसे हमने सत्संग में सुना है, या जब हम वहाँ होते थे, कोई लेडी की कोई हेल्थ इशू है,
और गुरुजी ने उसी को कहना खड़े होके कि भी तो हम वहाँ दरी पे बैठते थे, कारपेट्स पे। हम एम्पायर स्टेट में नीचे बैठते थे, ग्रुप्स ऑफ 4 और 5। और वहाँ पे अगर कोई नई, उस टाइम पे नई संगत आई है और वो अपनी हेल्थ प्रॉब्लम लेके आई है, और उसी छोटे से ग्रुप में कोई गुरुजी ने किसी लेडी को भेज देना और कह देना अपना संगत सुना, बैठ के उन्होंने, एंड शी वुड बी टॉकिंग अबाउट द सेम मेडिकल प्रॉब्लम दैट द अदर लेडी हैड। तो उनको वहीं मैसेज मिल जाता था कि गुरुजी कैसे ठीक करते हैं या तो कैसे ठीक करवाते हैं। तो आप जब संगत सत्संग में जाते हैं और आप या बड़ा मंदिर जाते हैं, तो you need to understand that your sharing is only going to help the other person, because you have no way of knowing the people sitting around you who has come with uh, difficulties. I'll share with you, the other day it was an old Sangat meeting. It was not even a new Sangat meeting in Jaunapur, and I had gone there, and I was requested to speak over there. And I had people who have known Guruji personally and spent a lot of time with Guruji. And 3-4 people told me that day कि दर्शन आंटी, आज मेरे मन में कोई सवाल था, मैं गुरुजी से 10 साल से पूछ रही थी और आज मुझको उसका आंसर मिल गया। अब मुझे तो पता नहीं है उनका क्या सवाल है, उनको वो क्या जानना चाहते हैं, वो क्या पूछ रहे हैं गुरुजी से, पर वो संगत के थ्रू कहलवाते हैं। अगर मैं आज आपसे कुछ कह रही हूँ तो मैंने तो नहीं बैठ के प्रिपेयर किया और सोचा कि आज मैं ऐसे बोलूंगी या वैसे बोलूंगी। जो फ्लो आ रहा है वो आ रहा है। और कई बार मुझे भी लगा है जब मैंने सत्संग किए हैं और मेरे को किसी ने आके अगले दिन बोला कि आपने ऐसे बोला, मुझे याद भी नहीं कि मैंने ऐसे बोला, मुझे पता भी नहीं कि मेरा थॉट प्रोसेस था वो। मैंने कहा मैंने तो कभी ऐसे सोचा ही नहीं, तो मैंने कल ऐसे कैसे बोल दिया सत्संग में, या मैंने जूम में ऐसे कैसे बोल दिया। It was not a part of my thinking process at all. Yet that idea has come out, or yet that affirmation has come out, or yet that I have said something, some content has come, which I'm not even aware of. So I feel that you must share small, and they will all begin with the small things. आज जब नई संगत बड़ी एक्साइटेड होती है, ओम देखते हैं वो रोटी पे या चाय की पत्ती में या किसी कप प्लेट एंड सॉसर में, या हम भी इसी में से गुजरे हैं। आप प्लीज याद रखिएगा कि हमारी भी वही एक्साइटमेंट होती थी। जब मैंने डिफेंस कॉलोनी से मायापुरी जाना, हरिनगर जाना, हमें अगर कोई गाड़ी मिल जाती थी जिसके ऊपर कोई स्टिकर लिखा हुआ है, हम आके गिनते थे कि भाई आज डैडी ने कितने मिले, मैंने कितने देखे। हमने कहना जी हमें, और हम एक्चुअली जब हम विंडो डाउन करके उनको बाय बाय वगैरह करते थे जो दूसरी गाड़ी में बैठे जो निकल के जा रही है। 2-3 गाड़ियां होती थी सड़क पे उस टाइम पे, एंड आई एम टॉकिंग ऑफ गोइंग फ्रॉम साउथ दिल्ली टू ऑल द वे टू रिजोरी गार्डन साइड। There used to be 2-3 cars. Today there are 300 cars on the road, and we don't even stop and say namaste to those people. We don't even acknowledge them now. But at that time there was that huge excitement that we are starting something new in our lives, and we are being groomed, for being better people, for being better humans, to conduct ourselves in a better fashion. Spirituality is not about sitting down and only reading the Guru Granth and only reading the Vedas and only doing the Gita. That's only one part of it, which will assist us and help us, or the Shiv Puran. Guruji didn't tell everyone to read the Shiv Puran. He picked up few people and said, "Ye Shiv Puran padna." When he asked my mother and father and sister to do some prayers out of the Guru Granth Sahib, my mother said, "Guruji, you are not telling darshan anything." He said, "No, inu koi lod nahi koi path karan di." Now, this is in a family of 4. My father was given a particular part to do, my mother was given, my sister was given, but he didn't ask me to do anything. And when my mother, as we grew older,
And when my mother would tell me कि कोई पाठ नहीं तुसी कर दे, तुसी कोई ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਹੈ और तुसी पाठ नहीं करते, I would laugh it off and say आप तो बैठे थे वहां जब गुरुजी ने कह दिया था कोई जरूरत नहीं इसको करने की. So I'm only saying these are all contributory factors to that. But if you share a personal experience which you have experienced, then you will you may ask a question that how do I know that what I am feeling is real or is it just imaginary? It's a good question. Yes, you are right. I do not know what I'm thinking. Is it real or is it just my own thinking, or only I've built it up and I've created it in my imagination? But today, over the years, I will tell you that when something happens to me, I know it's real because when it comes before me, it has a light around it. I see that light around it. And I know then that it's come, the source is Guruji, is nothing else. It's not my imagination. My sister sometimes often thinks that whatever she saw was imagination. Then she discusses it with me. And then I tell her, I said, no, this was real. But you don't know how to make the difference between real and imagination. You will learn. In time, you will also yourself realize what is real and what is just your imagination. दर्शन आंटी, जैसे आपके पूरे सत्संग से और जैसे हमने सत्संग सुने कि गुरुजी ने कोई रिचुअल्स नहीं दिए, गुरुजी ने कोई नहीं बोला कि ये रिचुअल्स हैं ऐसे करो, बस जस्ट आप एक बारी बोलो या कनेक्ट हो स्वरूप से, या आपने बोला कि आप एक बारी गुरुजी भी बोलोगे तो गुरुजी आपसे आप कनेक्ट हो गए. तो जब हम एक सत्संग करते हैं, आपने बोला कि सत्संग आप ज़रूर जाओ, तो उस सत्संग की जो गुरुजी ने आप लोगों को सिखाया, उसके आप मुझे स्टेप बाय स्टेप आप इन सबको एक्सप्लेन करिए, हाउ टू डू सत्संग. That's very, very elaborate now. लंबा है. But इतना जरूर था. पहली चीज तो ये थी, जब हम गुरुजी के आज भी जब सत्संग में जाते हैं, ये बहुत जरूरी है कि आपका फोन स्विच्ड ऑफ होना चाहिए. दिस इज वेरी नेसेसरी. वो इंसिस्ट नहीं करते कि आप सिर कवर करें, जबकि जब आप गुरुद्वारे जाते हो या कहीं और किसी कीर्तन में जा रहे हो तो भाई जी या रागी जो हैं वो इंसिस्ट करेंगे कि आप अपना सिर कवर करो. गुरुजी ने वो फ्रीडम ज़रूर दी थी कि आप सिर ज़रूरी नहीं है कवर करना. जो कवर करते हैं बहुत अच्छी बात है, जो नहीं करते वो भी बहुत अच्छी बात है. आपका फ़ोन बंद होना चाहिए. और हमेशा उन्होंने यही कहा था कि कम एंड surrender yourself to me, in the sense that leave all your worries, leave all your problems outside. क्योंकि मुझे तो पता ही है आपकी क्या डिफ़िकल्टी है, आपकी क्या दुख भरी कहानियाँ हैं, या क्या आपको सॉल्यूशंस चाहिए, तो वो मैं अपने हिसाब से मैं करूँगा. आपको यहाँ आके वो कहते थे कि दिल्ली वाले सारे 2 मिनट मैगी नूडल होते हैं. आप जैसी मत्था टेक रहे हो उसी वक्त आप उनको सुना रहे हो कि गुरुजी ये मेरी प्रॉब्लम है, पहली बार आए हो. तो गुरुजी ने कहना कि भी जरा बैठते जा, जरा शब्द सुन ले, जरा सुन. एंड कभी कभी वो किसी को खास बोलते थे कि ये शब्द तेरे वास्ते लगाया है, इन्हें सुन. अब चाहे आपको पंजाबी समझ आती है, गुरमुखी समझ आती नहीं आती है, पर आपको वो शब्द तो सुनना पड़ता था, क्योंकि वो म्यूजिक कॉम्पोजिशन से ही आपको कुछ अंदर आपके टॉक्सिन्स वगैरह जो है वो हील होते हैं. हम रियलाइज नहीं करते हैं, बट द वर्ड, it's so important in all religions. The Christians also think of it, the Muslims also think of it. The word is the Shabad, and even listening to the Shabad going into your ears, whether you understand it or not, is a huge healing that takes place in the body, or purity that goes into the body even for that minuscule second. उन्होंने यही
ज़्यादा उनके नियम तो थे ही नहीं। वो उन्होंने कभी किसी को कहा नहीं था कि वो तो 8 बजे जो कोई आर्मी वाले होते थे उनको कहते थे ओ तो 8 बज गए, तुम्हारा टाइम हो गया, पैग दा, चलो चलो जाओ अपना कर जाओ, तो अपना अपना शुरू करो। सो उनके एक्चुअली कोई नियम थे नहीं, उनके बहुत कम थे। पर ये ज़्यादा था कि आप फोन्स मत इस्तेमाल करो, आप कोशिश करो वहाँ टाइम देने की, जल्दबाजी मत करो, आप आएंगे पर जाएंगे मेरे मर्जी से। आप बीच बीच में उठ के अगर आप, अब गवर्नमेंट ऑफिसर्स तो आते ही थे बहुत, अब उनका काम है, वो दे आर ऑन कॉल, वो घड़ी घड़ी उन्होंने बाहर जाना और फोन सुन के वापस आ जाना। उन्होंने कभी किसी को रोका नहीं सिगरेट पीने के लिए। वो कहते जरूर थे कि छड़ दो की कर की करना है, पर अगर आपने नहीं छड़ा तो वो आपके पीछे नहीं पड़े रहते थे। वो आपको बोलते नहीं थे कि इन्होंने गर्ल्स यूज्ड टू कम, दे वांटेड टू गेट मैरिड। उन्होंने बहुत से लोगों को कहा कि ये रिश्ते में मत जाइएगा, आप कुछ कहीं और रिश्ता कर लीजिएगा, ये लड़का ठीक नहीं है आपके लिए, लड़कियों को बोला खास। पर बहुत सी बातें बाद में निकली कि वो शादियां उन्होंने गुरुजी की सुनी नहीं, शादी कर ली और वो दैट शादी नेवर वर्कड। मेरा तो ये एक सोच है अपनी कि अगर आप गुरु के जा रहे हैं और अगर वो आपको कुछ कहते हैं तो उसको फॉलो करिए, ये तो मत जाइए। अगर आप गुरु जी की शब्द वर्ड को आप ना समझना चाहते हैं, ना एक्नॉलेज करना चाहते हैं, ना करना चाहते हैं, तो फिर वी आर वेस्टिंग आवर टाइम देन। There is no need for us to go and sit there if we're not going to follow whatever he's told us to follow. And he had, he never insisted on uh, us going to gurdwaras or temples, or there was nothing in his regime on when Sudha Ahuja's daughter was getting married, and she was preparing a vegetarian menu for the wedding. Guruji overturned it. He said, no, you are getting a barat which is coming from London, and you will look after the barat, and you make a small enclosure for me on the side. People can carry on having their cocktails and they can keep on having their non-veg on the other side of the farmhouse. But those who want to come and meet me will come and meet me. उन्होंने तो एक दिन मेरे को जनकपुरी में किसी की शादी हम अटेंड कर रहे थे, तो मेरे को विंटर्स का टाइम था, वो मेरे को आके कह दिया मम्मी को विस्की पिला दे। एंड मैं कौन जी, मम्मी तो पीती नहीं है। मेरे फादर थे एयरफोर्स से, तो अगर वो कहते डैडी को पिला दो तो आई अंडरस्टूड दैट। मैंने सोचा मजाक कर रहे हैं, आई डिडंट बॉदर अबाउट इट। वो फिर मैं मेरे को बुलाने आ गया, गुरुजी बुला रहे हैं। आई वेंट बैक टू वेयर गुरुजी वाज सिटिंग एंड ही सेड के मम्मी नो विस्की पिला देती। आई सेड नहीं गुरुजी, मैं थोड़ी ना, मम्मी मम्मी विस्की थोड़ी ना पीन देने, नहीं नहीं नहीं, मम्मी नो विस्की पिलाओ। फिर मैं हंस के वापस आ गई। मैं मम्मी डैडी वो हीटर के पास उनको विंटर्स में बैठा रखा था, ग्राउंड था डीडीए का कोई बहुत बड़ा। एंड सो आई सेड मम्मी गुरुजी कह रहे हैं कि आपको विस्की पीनी है। वो कहते नहीं, तेरे को गलती लगी होगी, वो डैडी के लिए बोल रहे होंगे, मैं तो उनको पता ही है मैं तो पीती नहीं हूँ। तो वो फिर कोई आ गया, गुरुजी बुला रहे हैं, मैं तेनू क्या नहीं, मम्मी नो विस्की पिलानी है। मैं क्या, अच्छा। Then we took it, third time I took it seriously. Then I went back, then that fellow was roaming around the waiter with the glasses and all. I took that whiskey and अच्छा garam pani डालो इसमें, and we gave it to the mother. But we realized subsequently that it was a very cold night. It was winters. And she was sitting on the ground level, on the grass level. And he asked her to have this whiskey only so that she wouldn't come down with pneumonia or anything later. He was taking care of her chest at that time when he asked her to have this. But it was not a joke. हम तो शुरू में हंसे उसके लिए,
But it was really not a joke. It was a serious matter, and he was taking care of her health. अब वो हमारी मदर को नमूनिया नहीं हुआ, अब वो हम कैसे अब प्रूव करें कि हाँ गुरुजी ने इसीलिए पिलाया था क्योंकि मेरी मदर तो बीमार हुई नहीं फिर। तो हमारे पास तो कोई अब एविडेंस तो है नहीं बताने के लिए कि हाँ उनको नमूनिया हो जाना था। वो तो अपनी सोच पे है, डिपेंड करता है कि हमने ऐसे सोचा और हमको लगा, उन्होंने प्रिवेंशन करी, उन्होंने प्रिवेंटिव करा मदर के लिए। अब उनके नियम ज्यादा थे नहीं उनके, इसीलिए तो मैं तो यही समझती हूँ कि इतना आसान है गुरुजी के पास जाना, इतना आसान है कि आपको सिर्फ अपने जूते बाहर रखने, जोड़े बाहर रखने हैं और आपने अपना फोन बंद करना है, और तो कुछ आपको करना ही नहीं है वहाँ। वो कौन सा आपसे कह रहे हैं कि आप भजन गाओ मेरे साथ और आप मेरी प्रशंसा करो और आप ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साहेब बोलते रहो या चैंट करते रहो। वो तो कुछ कह ही नहीं रहे आपको करने के लिए। ना वो आपको कह रहे हैं चैंटिंग कर ले के, ना वो कह रहे हैं कि 3 बजे उठ के पाठ करना है, ना वो आपको कह रहे हैं नहा धो के ये करना है, वो तो या अगरबत्ती जलानी है, कुछ नहीं वो कह रहे हैं आपको करने के लिए। तो इतना आसान कर दिया उन्होंने, तो मुझे तो नहीं लगता इसमें कोई डिफिकल्टी होगी। आप तो कहीं पे भी बैठे, आप गाड़ी में बैठे हैं, ट्रेन पे बैठे हैं, एरोप्लेन में बैठे हैं, आपको तो उनको याद ही तो करना है, कनेक्ट करना है, आपने उनके साथ कनेक्ट करना है। आपने कुछ करना तो है ही नहीं, कोई रिचुअल तो है ही नहीं उनके सिस्टम में, कोई रिचुअल नहीं है। जो भी अब थोड़ा सा हो रहा है वो क्योंकि बड़ा मंदिर को थोड़ा सा एक डिसिप्लिन तो रखना पड़ता है मंदिर में, तो इसलिए उसके लिए उन्होंने कुछ नीतियां बना रखी हैं कि आप ऐसे आएंगे, लाइन में आएंगे। लाइन में तो तभी हम आते थे जब गुरुजी वहां थे, हम थोड़ी ना लाइन तोड़ तोड़ के जाते थे, लाइन में ही आते थे सब उस वक्त। पर हाँ, डर तो था कि गुरुजी वहां बैठे हैं। और अब ये जरूर था कि आप हम लोग आते थे, एंड और उन्होंने ये कह रखा था कि जब आप लंगर करेंगे तो पूरा खत्म करेंगे, कुछ नहीं छोड़ेंगे। तो मैं, हम लोग आज भी जब अपने घर में खाना खाते हैं तो हम प्लेट पूरी साफ करते हैं। वो एक आदत डाल दी उन्होंने कि खाना वेस्ट नहीं होना चाहिए। तो वो अच्छी अच्छी बातें तो हमने सीखी है उनसे फिर, कि डोंट वेस्ट फूड, टेक केयर ऑफ योर ड्राइवर हु स्टैंडिंग आउटसाइड। आज भी चाय प्रसाद और लंगर ड्राइवर्स के लिए बाहर जाता है, स्टाफ के लिए बाहर जाता है। वो ये उन्हीं से सीखा ना हमने। बेसिकली बी ह्यूमन। He थैंक never यू। promoted any books, any Vedas, and he didn't even. Uh, uh, he talked of Guru Nanak, but he didn't say that you should all read the Guru. He understood. He knew that Sangat that was coming were not Punjabi reading or Punjabi speaking. They could be speaking Punjabi, but all of them did not read Punjabi or Gurmukhi. He could not have told them कि जी गुरु ग्रंथ साहब लेके बैठ जाते, पढ़ना शुरू कर दिया। शिव पुराण का उन्होंने जरूर कहा, बिकॉज दे वर सच ए ह्यूज मास ऑफ people who were non-Sikhs, who were coming to the darbar, they were coming into his presence. Therefore, I think he suggested that read the Shiv Puran, because I am a Shiv image also. I am Lord Shiva, and therefore perhaps, and he put them on the right path instead of wasting your time watching social media and sitting, which has a role to play in our life, but you don't spend 4 hours sitting there in front of the television. Maybe you can spend half an hour reading the Shiv Puran, and you may not understand anything, but remember it is helping you, whether we understand the language or not. ओके आंटी, थैंक यू। Thank you very much for asking me to share some of my experiences and my understanding of Guruji, which is very, very small, because he is larger than life. And I wish you all a very, very happy journey with him.